today's session, we are going to talk about a new chapter which is exponent and power. So, what is the use of exponent and power in our day-to-day life? What is its application part and more of it? जिसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चंस किस टॉपिक में से पिक होंगे. Okay, so we get to know one by one each and everything about this. Okay, so let's start about the chapter's name, which is exponent and power. क्या होता है exponent और क्या होता है power? Okay, क्या दोनों सेम चीजें हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? इन सब चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है. Okay, यहाँ पे two numbers you can see this is 2 and this is 4. Now what is this 2 and what is this 4 और क्या हम इसे कहेंगे और क्या हम इसे कहेंगे. Okay, चलिए देखते हैं. 2 is the base number and 4 is the exponent. Now what is base and now what is exponent? This 2 is to power 4 is nothing. That means this number shown is nothing but 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. That means 2 is being multiplied 4 times. So the number which is getting multiplied, वो number जो multiply हो रहा है, that is your base. Okay, and the number of times it is being multiplied, how many times? 1 2 3 4 times 2 multiply हो रहा है. Okay, 4 times multiply हो रहा है, so 4 will be the exponent here. So exponent tells us that how many times the number get multiplied, and 2 is the base, and this shows us that what number is being multiplied. Okay, so this is about the exponent and the base. Now what is power? This complete term is power. Okay, so this is a slight difference between power and exponent. Okay, so how do we call it? कैसे हम इसको कह के बुलाएंगे? तो here's the table. 2 raised to power 1 और 2 to the first power. What does that mean? अगर सिंगल आप नंबर लिख दो कोई भी, तो जब इसमें कोई भी आपको एक्सपोनेंट नजर नहीं आती, तो हिडन एक्सपोनेंट इज ऑलवेज 1. हिडन एक्सपोनेंट क्या होगी आपकी? 1 होगी. ठीक है, तो 2 to the first power. ओके, और 2 raised to power 1, ये भी हम कहते हैं. नाउ 2 multiply by 2. 2 को कितने बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 times. दैट मीन्स 2 स्क्वायर्ड, जो कि हम इजीली हमारे जो मेंसुरेशन जैसे चैप्टर्स हैं वहाँ पर यूज़ किए हुए हैं. जब हमने स्क्वायर का एरिया निकालना था, लेट्स सपोज 16 सेंटीमीटर किसी का आपको मेजरमेंट दिया हुआ है साइड का, तो उसका जो स्क्वायर करोगे इसको, तो 16 का स्क्वायर करोगे, तो हम वहाँ पे स्क्वायर्ड, और फिर उसके बाद जब वॉल्यूम निकालते हैं स्क्वायर किसी क्यूब का, तो उसमें हम क्यूब को भी बहुत अच्छे से जानते हैं. So 2 multiply by 2 is nothing but 2 squared. Similarly, in same fashion, 2 multiply 2 is what? 2 cubed. Okay, 2 to the third power. Okay, or 2 raised to power 3. Here, if 2 is getting multiplied 4 times, जब 4 times multiply करोगे तो 2 raised to power 4 आ जाएगा. That is 2 to the fourth power. Similarly, if 2 is getting multiplied n times, तो अगर आपने 2 को n times multiply किया, then इसको आप लिखोगे 2 to the nth power और 2 raised to power n. Okay, so this is how you going to call these numbers. तो अभी हमें रीड करना आ गया है, अभी हमें इसका मीनिंग पता है. नाउ नंबर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव को हम देख चुके हैं. नाउ हाउ डू वी एक्सप्रेस नेगेटिव एक्सपोनेंट, और उसका मतलब क्या होता है? अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया है, देन व्हाट डज दैट मीन? ये सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का खेल है. कैसे? आइए समझते हैं. इन जनरल फॉर नॉन जीरो इंटीजर ए, for non-zero integer a raised to power minus n is equals to nothing but 1 upon a raised to power n. That means जब भी आप न्यूमरेटर से किसी को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो जो आपका जो साइन होगा वो चेंज होगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर 1 upon 5 स्क्वायर को मुझे लिखना है, ओके, यहाँ पे 5 स्क्वायर को मुझे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसका साइन चेंज कर दूंगी. सो दैट विल बी हियर पॉजिटिव बट हियर नेगेटिव. तो a raised to power minus n is nothing but 1 upon a raised to power n. Okay, now here n is always positive integer. Also, we need to take care of one thing, that a raised to power minus n is the multiplicative inverse of a raised to power n.
Now what is multiplicative inverse? Multiplicative inverse वो होता है जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, वो आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज 1। तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास यूनिट आ जाता है, 1 आ जाता है, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है, तो उस दोनों को आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा n का। देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके n को n से 1/n लिख सकती हूँ मैं। अब मुझे पता है यहाँ से कि नेगेटिव एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जब मैंने इसे ऐसे कन्वर्ट किया, ये कैंसिल आउट हुआ और 1 आ गया। दैट मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। ओके, ये समझ में आ गया हमें। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पे हमारे पास है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दीज थ्री गिवन नंबर्स। तो चलिए वन बाय वन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन इज 4⁻³ विच इज नथिंग बट 1/4 cubed, 1/4 cubed और 1/4⁻3। ओके, चलिए हम सबको पता है कि 4 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 64। तो 1/64 विल बी आंसर। ओके, वैसे 1/4 क्यूब भी इज द करेक्ट आंसर, बट डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस गिवन कि आपको ऑप्शंस क्या प्रोवाइडेड है, वहां से आपको पता चलेगा कि 1/4 क्यूब आपका आंसर आएगा या 1/64 आपका आंसर आएगा। द सेकंड वन इज 1/6⁻², 1/7⁻²। ओके, तो जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट है यहाँ क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ जाने पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड sin square is nothing but 49. So this will be the answer. Now the third one is, here's the question, -6/7 whole power -3. Now before solving this particular part, okay, चलिए कुछ नोट हम स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है एक्सपोनेंट पार के उनके बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज b/a होल पावर -m इज नथिंग बट a/b होल पावर m। दैट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पर 5/2 होल पावर -2 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है, किसे, अगर मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसे मैं पॉजिटिव बना दूंगी, और यहाँ अंदर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। ठीक है, सो b/a होल पावर -m इज नथिंग बट इक्वल्स टू a/b होल पावर m। ओके, नाउ the second thing is, here the reciprocal of a/b whole power -m is nothing but equals to b/a whole power -m और a/b whole power m. These two things are same। अभी हमने नोट में पढ़ा था, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो फिर इसके बारे में, ये इसका रेसिप्रोकल या इसका रेसिप्रोकल कैसे है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब वही जब मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए a/b होल पावर -m। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा कि अगर इसको हमें पॉजिटिव करना है तो हम इसे b/a लिख दें। ठीक है, अब b/a होल पावर m मल्टीप्लाई बाय a/b होल पावर m क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाकर हमको रेसिप्रोकल बनाना है तो वो भी वैसे हम बना सकते हैं, वो भी सेम चीज बनेगी। अब ये हमारा क्या हो गया, a/b होल पावर m क्या बन गया, रेसिप्रोकल, और इसी को तो हम क्या लिख सकते हैं, b/a होल पावर -m, बिकॉज बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। जो थर्ड ऑप्शन हमारा बच गया था, वो थर्ड ऑप्शन को हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। अब दिस इज -6/7 होल पावर -3। ओके, तो अगर यहाँ पे ये जो मुझे नेगेटिव दिख रहा है एक्सपोनेंट, इफ आई नीड टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव वन, it will be -6/7. No, not -6/7, but it will be -7/6. Okay, -7/6, बिकॉज मैं यहाँ पे साइन चेंज कर रही हूँ, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, ओके, सो -7 cube is nothing but -343 and cube of 6 is what, 260.
So that will be your answer. Minus 7 by 6 whole cube or minus 343 whole divided by 216. Okay, let's move towards the next question. Simplify this number. Now you need to simplify them, and you know now that a raised to power minus m is nothing but equals to 1 upon a raised to power m, and we are going to solve this expression. इस expression को हम किससे solve करेंगे? With the help of this one all. केवल यही यूज करेंगे हम इसमें. चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं. चलिए अब ये -1 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1. ओके, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो हम यूजुअली उसे नहीं लिखते. तो क्या यहाँ पर हम ये कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये आपका मतलब तो यही हो गया. ठीक है, अब हमें जो परेशान कर सकते हैं वो ये x टू पावर -1 और y टू पावर -1. तो क्या करते हैं, इसे भी हम पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. ये हो जाएगा 1 by x टू पावर 1. x टू पावर 1 इज नथिंग बट x, so 1 by x. Similarly, for with same fashion, this is 1 by y. Okay, now take the LCM of these two. 1 by x plus 1 by y. So it is going to be xy. तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसे एलसीएम लेंगे, इसको करेंगे, यहाँ आएगा y मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास y. सिमिलरली यहाँ पर x आपके पास रिमेनिंग होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस. नाउ 1 डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट टर्म विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. सो इट इज गोइंग टू बी xy होल अपॉन x प्लस y. दैट मीन्स योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ option will be the correct answer. Okay, okay, let's move towards the next question. Now what is it? Here it is, what is the value of the given expression, and this is the given expression. Now the prerequisite of this particular chapters are square and square roots and cube roots. तो square roots, cube roots आप पढ़ चुके हैं, उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. ठीक है, तो वहाँ ये जो प्री रिक्वेस्ट मैंने बताया उनके एप्लीकेशन है. यू ऑल नो कि रूट 16 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 4. सिमिलरली रूट 64 की वैल्यू होती है 8. ओके, इसके अलावा यहाँ पे और क्या यूज हो रहा है? क्यूब रूट ऑफ 512. सो 8 क्यूब होता है आपके पास 512, तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा. सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 64, 4 क्यूब होता है 64, तो क्यूब रूट ऑफ 64 होगा 4. नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज हियर. सो दिस इज द क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके बेसिक लॉ है, बेसिक लॉज पे भी नहीं गए अभी हम, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया. दैट इज ऑल्सो इन ओलंपियाड. ओके, चलिए तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो पुटिंग वैल्यूज इन इट, रूट 16 इज इक्वल्स टू 4, सो 4 स्क्वायर प्लस रूट 64 वैल्यू इज 8, सो 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 512 is nothing but 8, so 8 minus cube root of 64 which is what? 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. That will be 16 plus 8 upon 4. So 24 by 4 which is 6. So 6 will be your answer. Now from the given options, option number D will be the correct answer, right? Now let's move towards the next question. Which is the next question? The value of this. You need to find the value of this. Now ये आपको जो क्वेश्चन है इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, तो क्या करना है? सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. किस में करेंगे? इम्प्रॉपर में. देन यू कैन इजीली सी कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्यूब रूट बनता हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट बनता हुआ दिख जाएगा, और फिर आप इसको सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड इन IMO, right? So that's why it is very important to have a brief knowledge of cubes and cube root, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी से कर लें. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको फटाफट से लिख लेंगे. ओके, नाउ जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उसमें कन्वर्ट करना है आपको गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन को. दैट विल बी 2 4 + 1 9 हो गया, 9 by 4
multiply by 3 plus 1 4 plus 4 by 3 whole square plus 1 divided by cube root 24 27, so 27 by 8. चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं 3 by 4, इसको 3 का स्क्वायर 4 को, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. इसे आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए अभी, प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ, ये क्या है आपका 3 क्यूब विच इज 27, इट इज 2 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8. देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट 3 by 2. सिमिलरली 4 का स्क्वायर आपके पास होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा आपके पास 9. ओके, प्लस 1. ठीक है, अब इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करती हूँ तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा. क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब कितना होगा 3, तो ये कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा 2 क्यूब, उसका क्यूब रूट होगा 2, तो ये किस में चला जाएगा न्यूमरेटर में. चलिए तो अब आप इसे कट कर सकते हैं, यहाँ पे 8 टाइम्स दैट विल बी 3 टाइम्स, तो 8 by 3 यहाँ पे रिमेनिंग बचा, यहाँ पे 8 by 3 प्लस 2 by 3. ओके, बोर्ड मास का रूल लगाते हुए यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नाउ 8 9 10 10 by 3. So 10 by 3 is not given in the options, but we can again change into mixed fraction. So that will be 3 to the 9 plus 1 10 by 3, which is here option number A. So option number A will be the correct choice here in this particular question. Okay, so here in this session we get to know कि एक्सपोनेंट एंड पास क्या होता है. ठीक है, इसका एप्लीकेशन पार्ट स्टार्टिंग में हमने देखा था कि मेंसुरेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है जब एरिया वॉल्यूम की कैलकुलेशन होती है. इसके अलावा बिगर लेवल पे जब आप साइंटिफिक नोटेशंस के लिए आते हो, जो कि इस पूरे चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन का हमें और ज़्यादा अंदाज़ा होगा. जब भी बहुत ज़्यादा बड़े नंबर या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर कैलकुलेट करने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है एक्सपोनेंट और पास की. So this was all for this session. Next session में we get to know about the laws of exponent, which is very important topic. Why is it so? Because उसमें से maximum number of very good questions पूछे जाते हैं, उन्हीं laws के ऊपर based होते हैं questions. Okay, so next session में मिलते हैं. Bye bye, take care.